हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो है वैसे। एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं एज अ राइटर मैं क्या क्या करता हूँ एंड मैं किस तरह से अपने स्किल्स को पॉलिश करता हूँ, मैं किस तरह से राइटिंग करता हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहें, बट बिफोर एवरीथिंग, before I start this video, I request you to kindly subscribe to my channel if you are new to this channel and stay tuned. Okay, so coming to one of the most important part of this vlog, जैसे कि in the beginning of this video I said कि I'm going to share my day with you and I'll give you the glimpse of what it's like to be a writer and a day with a writer. As a writer, there are few important things that I do during the daytime. आप कह सकते हो कि there are three things that I do as a writer. So the first thing is I read extensively. So reading is basically one of the most important thing that I do during the daytime. I give a lot of time to reading. मैं अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ता हूँ। मैं अलग अलग राइटर्स का आई टेक इनपुट्स एंड देन आई ट्राई टू मेक माई ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग which I believe I'm doing pretty good. I'm very satisfied with what I do, with how I write and all. I'm not copying anybody. It's just that we are taking inspiration from other writers because एक बहुत फेमस सा कहावत है, if you don't have time to read, you don't have time to write. अच्छा, ये जो कहावत है, this was by Stephen King, one of the famous writers, if you must be knowing him. तो आई एक्सटेंसिवली फॉलो दिस थिंग कि जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, बट फॉर लिखने वाली बात, यू हैव टू बी, जितना ज़्यादा आप रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा आप लिख सकते हो. So reading is a part of my job as a writer and it helps me in different ways, especially like absorbing the structural technique of writing. एक तो वो चीज़ है, दूसरा रिदम, तीसरा पेसिंग हो गया, चौथा हो गया मेरा अंडरस्टैंडिंग कि what works as a writer and what doesn't work as a writer. So these are the few things that I take care of. Second thing is consistently, in fact, refining my stories and especially after creating compelling narratives. तो जो भी मैंने मान के चलो प्रोजेक्ट तैयार किया, जैसे अभी आई वॉज वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट एंड इट टुक मी अराउंड 3 years टू कम्प्लीट अ बुक. ये लगभग 588 पेजेस टू 600 पेजेस के आसपास का है, जो मेरा एडिटिंग है. अभी फाइनल एडिटिंग तो नहीं बोलूँगा उसको, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट्स दैट आई हैव completed and it has to go through extensive editing. So I'm in the second phase of this editing part and how I do editing is just say, if you can see, this is I'll show you, this is like one of the chapters. ठीक है, तो I do take the printouts क्योंकि मेरे को वो फील चाहिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ ना. सपोज आई एम रीडिंग दिस थिंग, मेरे को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि देर हैज़ टू बी सम मॉडिफिकेशन और सम चेंजेस, तो आई एम गोइंग टू मार्क इट विद पेंसिल. कुछ एडिशन है या कुछ कुछ ओमिशन है, तो दैट्स व्हाट आई डू. मैं उसको पेंसिल से मार्क करूँगा, देन आई विल गो बैक टू माई लैपटॉप एंड देन आई विल चेंज इट देयर. किसी ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा बताया था कि व्हाट हैपन्स इज़ व्हेन यू आर राइटिंग अ फिक्शन, and I follow this very religiously. When you're writing a fiction, so you tend to write the first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, then you go back. Okay, उसने बोला कि ये 4-5 चैप्टर लिखने के बाद you go back to the first chapter. You'll be going back there only after like 3 or 4 weeks. जब आप वहाँ जाते हो, you read that one more time and you'll see that there are scopes of improvement in those chapters. You improve them, come back, then do राइट चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बाद फिर वापस से यू गो टू चैप्टर नंबर 1, फिर एक बार इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स देखो. देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 अगेन आप उस चीज़ को देखो कि इफ़ देयर इज़ सम स्कोप ऑफ री इम्प्रूवमेंट देयर हेयर एंड देयर जहाँ पर भी है. तो दैट इज़ द वे आई राइट माई बुक्स. तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम
आइदर आई एम रीडिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एडिटिंग, क्योंकि अभी क्या है, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद माई सेकेंड प्रोजेक्ट. सो अभी इट विल टेक मी अनदर कपल ऑफ मंथ्स टू एडिट दिस थिंग. ये ओवरनाइट वाला काम नहीं है कि आपने अचानक से नॉवल की तरह किताब उठाया, अपने मैन्युस्क्रिप्ट उठाया जो भी आपने लिखा है, एंड देन यू स्टार्टेड एडिटिंग, या फिर आपने बस रीड करके छोड़ दिया. नो, इट डजंट गो लाइक दैट. Because once you start reading it multiple times, you'll see that there are always some scope of improvements, especially in terms of grammar, or in terms of tone, in terms of flow, in terms of two events interlinking or something like that. So this is the thing that I do. उसके अलावा the third thing I do is जो मेरे को थोड़ा बैलेंस रखता है is to work on multiple projects. तो जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस वन. तो वाइल आई वॉज डूइंग दिस थिंग, इसके साथ साथ आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई थर्ड प्रोजेक्ट. थर्ड प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली हिस्टोरिकल फिक्शन. तो देर आर लाइक टू डिफरेंट जॉनर्स दैट आई हैव बिन वर्किंग ऑन. बोथ ऑफ देम आर फिक्शंस. ठीक है, एक तो चलो ठीक है, मेरे स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, तो आई न्यू अ लॉट कि मुझे क्या लिखना है, किस तरह से, हाउ द थिंग्स हैव बिन. बट पुटिंग इट इनटू फिक्शन इज़ ऑल्सो अ टास्क. Historical fiction, again, you have to be very particular and accurate with the timelines and events of history. You have to put your own characters, own settings, own story. तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई हैड अ लॉट टू डू. तो ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर कभी मैं एक जगह फंसता हूँ तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड गो टू द अदर प्रोजेक्ट, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है विच यू आर वर्किंग ऑन. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि यू आर गेटिंग स्टक समवेयर एंड यू आर नाउ वेस्टिंग योर डेज एंड योर टाइम एंड जस्ट थिंकिंग कि आगे लिखना क्या है. ये जो सोचने वाली चीज़ है ना, जहाँ आप फंसते हो, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ पुअर प्लॉट प्लानिंग. दिस आई वॉज टोल्ड अ लॉन्ग टाइम बैक बाई समबडी एंड आई टेक केयर ऑफ दैट. अब ये बेसिकली जो वर्किंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स है, दिस इज़ बेसिकली, एक तो इट अलाउज मी टू लाइक थिंक क्रिएटिवली, पहला चीज़, और दूसरा इट अलाउज मी टू प्रिवेंट राइटर्स ब्लॉक. अब ये राइटर्स ब्लॉक क्या होता है, यू मे हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड बट आई एक्सप्लेन इट कि ये होता क्या. बेसिकली एक तरह से समझो, ये एक प्लॉट होल है जहाँ पर आप कुछ स्टोरी लिख रहे हो, उसके अंदर का जो सब प्लॉट है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस प्लॉट को डालें, नहीं डालें, किस तरह से डालें, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा. दैट इज़ द टाइम व्हेन वी कॉल दैट टाइम पीरियड एज राइटर्स ब्लॉक. ये बेसिकली एक तरह से समझो कि आप अटक गए हो, यू हैव गॉटन स्टक देयर एंड इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सम न्यू वर्क या फिर न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़. तो ये होता है व्हेन यू आर राइटिंग अ फिक्शन एंड यू आर गेटिंग स्टक बिकॉज आपने शायद प्रॉपर प्लॉटिंग नहीं करी है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी है, उसका एक प्रॉपर सिनॉप्सिस नहीं बना है, उसका प्रॉपर जो एक डायग्राम होता है, एक जो लेआउट चार्ट, जिस तरह से आप एक स्टोरी को आप बनाना चाहते हो, अगर वो आपका पुअर है तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन. सो इन ऑर्डर टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम दैट आई वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. इट गिव्स मी इमेंस बैलेंस और इट वर्क्स फॉर मी 100%. कभी भी बाई गॉड्स ग्रेस कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आई हैव गॉटन स्टक समवेयर, स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग फिक्शन. कभी मेरे को कभी वो फेज़ नहीं आया जहाँ आई हैव गॉन इनसाइड अ राइटर्स ब्लॉक, and which I think is a good thing. So as a writer during the daytime, most of the time I spend my day reading and writing तो मैं बहुत कम ही करता हूँ because maximum time I do editing part. तो राइटिंग का किस तरह से है व्हेन आई एम राइटिंग नो, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा वो एक डिज़ाइन तैयार करने में, एक प्लॉट तैयार करने में. तो वंस योर प्लॉट इज़ रेडी नो, सब प्लॉट्स भी साथ साथ रेडी होते चले जाते हैं. दैट इज़ व्हाट आई डू. तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम नॉट राइटिंग राइट नाउ, आई एम डूइंग द एडिटिंग पार्ट बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिफोर दिस गोज़ इन टू प्रोडक्शन. सो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि जो चीज़ मैं आई एम पुटिंग इट फॉर माई readers, it has to be spot on. So this is how I spend my day. Most of the time I read, and if I'm not reading then most of the time I'm editing. वो भी एक तरह से रीडिंग ही हुआ बिकॉज जो मैंने लिखा है मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी है उस चीज़ को आई एम लाइक रीडिंग ओनली एंड जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे एज अ राइटर. इसके अलावा तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो on if you want to know how
you can be a good writer. Or I'm already a published writer, if I must tell you. I already have a book by the name An Epic Guide to Go Into Depression. It's a non-fiction book. You must check out. It's available on Amazon also. It's available on Flipkart as well. So I'm going to share the link also. But if you want, I'm going to make a separate video about how to write good fictions, how to write good non-fictions, and how to like design a character, how to create plots, how to create subplots, how to make a very compelling story and all those stuff. सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें. और आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन so that you are always notified whenever I upload a new video like this. एंड आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और ये एक छोटा सा फॉर्म ऑफ सपोर्ट है मेरे लिए. तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. I am really thankful for your time today, and that's it for today. And I'll soon see you in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Bye.